रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर राहुल गांधी और तलबा की तायद में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी को कल बहुत ही बेईमाना अंदाज में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह प्रियंका गांधी और दूसरे कायदीन बिलखुसूस अखिलेश यादव की भी गिरफ्तारी अमल में आई थी। एक तरफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा किया और वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वो धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ कर दें। अगर धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ नहीं किया जाता है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोडंगल में एहतजाजी जलसे से खिताब कर रहे थे। आज शहर बिलखुसूस नेकलेस रोड तक लोक भवन यानी राज भवन तक कांग्रेस ने एक ज़बरदस्त रैली निकाली और उसमें मोदी मुखालिफ नारे लगाए गए। और तीसरी तरफ आप देखेंगे कि उस्मान सिटी जो हिंदुस्तान की तारीखी उस यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है, वहाँ पर भी तलबा ने गैर मामूली तौर पर रैली निकाली और मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। ऐसे में हम सियासत टीवी आपके लिए एक खुसूसी रिपोर्ट पेश करता है। देखिए इस रिपोर्ट में तलबा क्या कहते हैं। I'm Sunny and I'm from Hyderabad. Okay, what are your thoughts on students that are died by suicide due to the leak of NEET paper? This is a systematic collapse that the country is suffering, and it's not a one-day thing. It is years of misgovernance, years of bad things, years of corrupt governments that we are seeing the results. We are seeing the crux of whatever is happening for all these years, and somebody has to be accountable for all of this, and somebody has to resign. It's the first step, and after the step, everything will follow, everything will set right. And this should not be diluted into any other political situation. This is a moment. This is a moment of the children, and we all should be with that. We should be to the roots of what the issue is, and we should rally towards it. What are your demands? The demand was very clear from the start. It is accountability, like Sir Sonam Wangchuk sir said. It was accountability, and it was accountability all the 21 days of his fast. After which the police, Delhi police, had taken Sonam Wangchuk ji, kidnapped him from where he was, and have kept him in a hospital post it. Then there was Sunset Chalo. After that, the brutality of Delhi police. Now it's not just the resignation of the education minister, but the resignation of the home minister, of Delhi police, of everybody who have committed the brutality against children, be it in the NEET suicides or on the Sunset Chalo march. Thank you. Yeah. Attempted NEET this year. You have attempted NEET this year? Yes, and even last year. You have attempted the pre-NEET? Yes, I have attempted the re-NEET. What about the result? The result, I did not. I did not get enough score to get into a government college. So what are your thoughts on the students who are died by suicide? What are your thoughts? It is disheartening. It's really disheartening that people have to lose their lives just for an exam. And they're writing the exam to save lives. Instead, we are losing our lives. We are losing our passion to be the ones that is going to save lives in the future. And is this how we're supposed to be treated? With law teachers, with tear gas, the ones that are going to be doctors and save people's lives? This is disheartening, and we don't get even a single proper response from them. Not justice or equality, not even a response. And it's been more than 20 days. And they just remove him from his hunger strike. Even Britishers listened when Gandhi strike. What is up with these people? What are the demands for you? My demand is justice. Please do not dilute the protest. Please give justice and fair investigation into the NTA agency and full removal of it, and a new agency should be formed. If they cannot investigate and give us justice and equality with complete proof fairly, resign. Dharmendra Pradhan ji, please resign. If you are not ashamed of yourself, where is your conscience? Are you human? मेरा नाम जैनब फातिमा है। आज आपका ये प्रोटेस्ट किस मुद्दे पर? मैं स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ, यूथ ऑफ इंडिया के लिए आई हूँ। मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा भी एम था डॉक्टर बनना। मैं भी तेलंगाना एमसेट लिखी थी 2016 या 17 में, तो मेरा रैंक 43,000 कुछ था। फिजियोथेरेपी ट्राई करे, हर दूसरी मेडिसिन की फील्ड ट्राई करे, लेकिन फीस ज्यादा थी, तो मैं बीएससी न्यूट्रिशन करी, एमएससी न्यूट्रिशन करी। अब मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरे छोटे भाई बहन भी है, और जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, वो सब जो है सेम कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा ये लाइफ का पहला प्रोटेस्ट है। मैं पहली बार आई हूँ, और मुझे लगता है रीजन ये है कि मेरे छोटे बहन भाई है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास नॉलेज है इस पे आवाज उठाने की, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं जिसके पास डर है।
अगर एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को इतना बुरी तरीके से दिल्ली में अरेस्ट कर सकते, तो फिर ये जो गवर्नमेंट है वो गरीबों के साथ क्या करेंगे? ऐसे लोग कहाँ पे जाएंगे जिसके पास एडवोकेट का सपोर्ट नहीं है, या कोई ऐसा कोई ब्रेव इंसान नहीं है उनके पास जिसका उनको सपोर्ट कर सके, तो वैसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स शायद सुसाइड कर लिए, या कुछ लोग सुसाइड करे लेकिन कभी रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं इन लोगों के लिए आई हूँ, इंसानियत के लिए आई हूँ। मेरा ये डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एटलीस्ट अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए, और जो दिल्ली पुलिस के तरफ से जो भी जुल्म किया गया है उसका भी जवाब देना चाहिए। शुक्रिया। नाजरीन, हम हाजिर हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के सामने बिल्कुल, और मेरे पीछे यहाँ एक प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है इन सपोर्ट विद दैट, वो जो जंतर मंतर में चल रहा है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, उनके सपोर्ट में आज इन्होंने भी एक प्रोटेस्ट निकाला। इनकी डिमांड साफ है, इनकी मांग साफ है। ये उस शिक्षा प्रणाली पर बात करना चाहते हैं, उस शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहते हैं जो शायद आज आईसीयू में है। उस शिक्षा प्रणाली पर ये बात करना चाहते हैं, उस शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस शिक्षा प्रणाली की बात करना चाहते हैं, उस शिक्षा मंत्री पर बात करना चाहते हैं जिसने अपनी बेशर्मी की हदें पार कर दी है, और जवाबदेही की कोई भी किसी किस्म की जवाबदेही तय नहीं की गई है उस शिक्षा प्रणाली के लिए। इसी सिलसिले में हमारी इनसे बात हुई, इनकी डिमांड्स को हमने सुना। ये इनका कहना है कि पहले भी ऐसे होते थे शिक्षा प्रणाली के में ऐसी चीजें होती थी पहले भी, और आज भी हो रही हैं। पहले अकाउंटेबिलिटी थी, सरकार सुनती थी, सरकार आती थी, सरकार सड़कों पर जब धरना प्रदर्शन होते थे सरकार आती थी, उनसे पूछती थी, धरना देने वालों से, प्रोटेस्टर से पूछती थी। लेकिन आज के समय में ये देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि छात्रों पर, वो छात्र जो देश का भविष्य है, जिनके बलबूते पर ये देश कायम है, जो ये देश दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। अब एक हास्यास्पद बात है कि सबसे युवा देश पर यहाँ के युवाओं पर ही लाठियां चलाई जा रही हैं। इसी चीज को लेकर इनकी मांगे हैं कि इन पर न्याय दिया जाए, इनको इंसाफ दिया जाए, और हमने इनसे बात की। इसी सिलसिले में पेश खिदमत थी हमारी ये रिपोर्ट। कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी।